Hello and welcome to the new class of our electrochemistry. And in this semester, as I told you, we are going to learn the solution chemistry. And what type of solution chemistry we are going to learn? So that's answer is solutions electrochemistry we are going to learn. Now, what we want to learn, or what for we want to learn, or what for this equation is asked in our examination. This means Butler-Volmer equation is asked in your examination for 5 marks or 7 marks or for 8 marks. Okay, but whenever they are asking you Butler-Volmer equation, at that time surely they can ask you surely they can ask you simply your one question with it, for 8 marks. Okay, that might be explain exchange current density, or that might be a Tafel plot equation. But our motto of today's class will be only and only Butler-Volmer equation. And whatever this Butler-Volmer equation is there, to explain this Butler-Volmer equation, I'm going to share with you guys one slide. And whatever this slide is there, this slide is about just only Butler-Volmer equation. Now, every one of you might have question in your minds. Every one of you might have questions in your minds, and that question can be like simply. So that question can be like, what for this Butler-Volmer equation is used? That question's firstly answer is, this Butler-Volmer equation is giving you study about electroreaction kinetics. What does it mean? It means whenever your reaction is taking place, listen very carefully. The things which are behind the equation, things which you should know before starting any equation, because if you know all these basics, then and then only you can know whatever the things are going to change, or whatever the things are they have included in your equation. So that for purpose, again I'm turning back to the application, or you can say what for this Butler-Volmer equation is used. Its answer is, it studies about electroreaction kinetics. Now you may ask me, ma'am, what is mean by electroreaction kinetics? So I'll answer you. See, whenever your reaction is there, at that time, suppose for example I'm showing you with an arrow, and that is, so consider this is an electrode, or you can have first of all your electrode, and on that electrode you can have two types of reactions. Which two types of reactions can be occurred? Firstly, any reaction here on your electrode, because your electrode here, whichever you are considering, that is made up of a metal. And now whatever your metal is there, that metal is converting into its a metal plus, means whatever your metals are there, that metals can go into the oxidation process. I mean to say, whatever your metal is there, that metal can lose the number of electrons. As everybody knows very well, whatever the metals are there, they have, we are learning from your fifth standard, what is that? Metals are having the capacity to lose the number of electron. Eventually your metals can accept the number of electrons. I mean to say, obviously, oxidized metal can accept the number of electrons, and it can undergo the process reduction. Now, whatever this process is there, these processes are occurring onto your electrode. Now, whatever these reactions are taking place, these reactions can be called, or these reactions can have some changes onto your electrode. Now, what type of changes or what type of actions are occurred onto your electrode, that we will learn about. So, whatever this
your changes are there. From that very first one change is nothing but diffusion of your reactant to the electrode. मतलब कि अब जो कुछ भी आप इलेक्ट्रोड लेते हो, इलेक्ट्रोड में देखिए जब कभी भी आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो तब आपको पता है कि एक सेल लेते हो आप, सेल मतलब ही इलेक्ट्रोड। तो अब ये जो कुछ भी सेल होता है, तो ये सेल जब कभी भी आप लेते हो तो उस सेल के नीचे जो कुछ भी बीकर आप रखते हो तो वो बीकर एम्प्टी रहता है, या फिर उस बीकर में आप कुछ सॉल्यूशन वगैरह लेते हो, ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन लेते हो। मतलब वो जो सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन में जो कुछ भी आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट, और आपका जो कुछ भी सेल है वो सेल, उस इन में अब जो कुछ भी रिएक्शंस होंगे वो रिएक्शंस, दैट माइट बी ऑक्सीडेशन, दैट माइट बी रिडक्शन। नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द details of where reduction is occurring and where oxidation is occurring, that we will learn after some time. But before that, now अब क्या होगा, देखिए अब अगर से आपके इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है, मतलब वहां पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि योर सॉल्यूशन पार्टिकल, सॉल्यूशन एंटिटी, सॉल्यूशन में से आपके इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ ये आकर के बैठ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं मामा, आयोन्स, वी कैन से deposition of ions can be takes place. And in another word, where you have learned already the term in surface chemistry, and that is nothing but adsorption. And now coming back to the point, what is that? अब यहाँ पर जब कभी भी आपका ये इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रोड मतलब M is converted into Mn plus or Mn plus is converted into M. Now everybody of you knows very well M can be converted into Mn plus, and Mn plus is accepting the number of electron and it can convert into the M. I mean to say oxidation or reduction, both of these reactions can be takes place in your on your electrode with the solution part, with the solution part. Now excuse me, I want to ask you just one thing. Do you have any background noise except my voice? Is there any background noise? No. Okay. Now is there any background noise? No. Wow, that's amazing. Chalo. Now whatever this your oxidation and reduction reactions are there, these oxidation and the reduction, these oxidation and the reduction reactions can give you simply on electrode, means cathodic, means anode, and the cathodic reactions are takes place. Now as everybody of you knows very well, LOAN, loan, as I told you in my live classes, what is that? LOAN. What is loan? Loan means L means left, O means oxidation, yes or no? A means anode, and then after it is negative in nature. But what do we need here? We need here O means oxidation and A means anodic, or anode is there. Now when you have this, now I'm going to clear the slide. Now whatever the yeah, whatever this M is there, means this M is converting into M is converting into, now it's Mn plus, means यहाँ से अब देखिए, यहाँ से मतलब यहाँ से जो कुछ भी आपका मेटल है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस में. दिस इज OHP which you have learned in your previous semester. Now I'm not going to tell you all what is O, what is H, what is P. Please go on, please go and look towards what is OHP. Okay, now I'm coming back to the point, and what is that? M is converted into Mn plus plus electron. What does it mean? It means whatever your metal is there, it is undergoing oxidation. It is undergoing what beta? Oxidation. Oxidation मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो समझ रहे हो क्या आप? मतलब कि अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होता है. अब यहाँ पर एनोड पर, फिर मुझे बोलो आप, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है कि क्या बोलूं, कैथोड पे होता है? तो वो होता है आपके एनोड पे. एंड दैट फॉर पर्पज वी कैन से वेरी इजीली that is nothing but metal is converting into Mn plus, and whatever this
reaction, or whatever your metal is converting into its ionic state, that can be called as anode, oxidation it is, and cathode, where your reduction is takes place. But listen very very carefully what I'm going to tell you here. Read here, here again I'm telling you, here in this reaction or on this electrode, whatever your metal is there, that metal is undergoing, that your metal is undergoing the oxidation process. मतलब उस मेटल का क्या हो रहा है, वो मेटल कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है, मतलब क्या कि it is converting into Mn plus, मतलब उसका it is working like an reduced species, it is acting as a reduced species, and whatever that reduced species is there, that reduced species is M, and now whatever your oxidized species is there, that oxidized species is CO. मतलब कि अब एनोड पर, मतलब कि अब एनोड पर आपका कौन सा स्पेसिस होगा, रिड्यूस, मतलब एनोड पर जो एनोडिक प्रोसेस होती है वो रिडक्शन की होती है, मतलब उसका रिडक्शन वो खुद रिड्यूस होता है, ऐसा बोल रही हूँ मैं, रिडक्शन होता है मतलब कि वो खुद खत्म होता है, खुद खत्म होता है मतलब खुद पर उस पर रिएक्शन हो रही है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। देन आफ्टर जो कुछ भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी, इट विल बी वाइस वर्सा, दैट इज नथिंग बट oxidation, oxidized process or oxidized entity, and that is nothing but obviously Mn plus. Now I think every one of you might must be clear with all this discussion. If yes, then please type yes quickly so that I can move, and if you have any doubts you can ask. I'm waiting for your replies. Oh god. Hello, am I audible to everyone? Hello, hello, clearly audible ना, कळलं का इथपर्यंत? Okay, very good. If you guys are clear, then I'll move towards next point. Now, if you have Mn plus electron, listen and look very very carefully. Now this N plus electron is converting into Ms, and now according to the very very famous one's theory, or you can say activated complex theory, or in another word you can say, or you can call, that is as transition state theory. What is it as? Transition state theory. As you know very well, one famous equation for rate equation, that is nothing but K. K is equals to, what is that? KBT upon H into e raised to minus delta G star upon RT, where this KB into T upon H, where this KB into T upon H can be replaced by B, कैपिटल B. हर एक बार वो KBT by H अगर हम लेते जाएंगे तो आप लोगों को आगे समझ में ही आएगा कि वो बहुत सारा वहां पर हौच-पौच हो जाएगा. ओके, तो वो हौच-पौच आपको होने नहीं देना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसे रिड्यूस कर रहे हो. एंड that after K is equals to B into e raised to minus delta G star upon RT. मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें KBT by T की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर रहे हो, B पुट कर रहे हो. अब जो कुछ भी आपका ऑक्सीडाइज्ड स्पेसिस होगा उसे आप CO बोलोगे, और रिड्यूस्ड स्पेसिस होगा उसे आप CR बोलोगे. ओके, अब यहाँ पर जो कुछ भी आपके रेट होंगे, जो कुछ भी आपके रेट्स होंगे, वो रेट्स आप दोगे जबकि आपका मेटल इज कन्वर्टिंग इनटू M प्लस. सो रेट ऑफ दैट इक्वेशन, अब मुझे बोलो ये रेट मेटल से यहाँ पर मतलब Mn प्लस जा रहा है, तब कौन सी रिएक्शन होती है, मतलब इट विल बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन. एंड जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनोडिक करंट होता है कि कैथोडिक करंट होता है बेटा, अच्छे से देखो ये पॉइंट, ये क्या होता है यहाँ पर, एनोडिक करंट IA. यहाँ से यहाँ पर मैंने एरो भी दिया है, और अब Mn प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू द M, मतलब वो होता है कैथोडिक करंट. नाउ हियर
listen very very carefully. Here we are considering only and only equilibrium condition. Equilibrium condition matlab IC will be exactly equal to IA. What does that mean? Means equilibrium मतलब जितना एनोडिक करंट होगा उतना ही कैथोडिक करंट होगा, मतलब कि टोटल करंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल. बट कब? कब? तो उसकी रिएक्शन या फिर उसकी कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम, एट एन इक्विलिब्रियम. समझे? अब यह जब होगा तब आप लोगों को कुछ टर्म्स देने हैं. अब हमें क्या डिराइव करना है? बटलर वोल्मर इक्वेशन. अब हवा में तो बात हो नहीं सकती है, फिर कुछ ना कुछ थिंग्स तो हमें पता होंगे जिससे कि हमें बटलर वोल्मर इक्वेशन निकालना है. तो मैं हर एक चीज आपको केयरफुली बता रही हूँ, वो अच्छे से सुनो. व्हाट इज इट? सी, रेट ऑफ आईए मतलब यहाँ से यहाँ पर जो कुछ भी आईए मतलब करंट फ्लो होता है, तो उसका जो कुछ भी रेट है आईए का, दैट इज इक्वल्स टू, मतलब कि रेट बता रहे इसीलिए आर ए इज इक्वल्स टू. अब क्या होता है यहाँ पर? एनोडिक रेट इज इक्वल्स टू के इंटू सी आर. सी आर क्यों? एनोडिक जब वो होता है रिएक्शन या फिर एनोडिक जो कुछ भी आपका करंट होता है, इट विल बी ऑब्वियसली हैविंग रिड्यूस्ड स्पेसिस. दैट फॉर पर्पज सी आर इज इंक्लूडेड हियर. एंड सेम एज दैट ऑफ फॉर योर आईसी, मतलब कि कैथोडिक करंट के लिए. तो आईसी इज इक्वल्स टू आर सी इज इक्वल्स टू के सी इंटू सी जीरो. नाउ आई फॉरगॉट टू टेल यू here as equation cos this is as equation number 1, cos this is as equation number 2. so here I'm telling you, ये जो पहला k का इक्वेशन आया था रेट का, उसे बोलो रेट इक्वेशन एज ए 1, and these two equations IA and IC cause these two equations as equation number 2. now रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पता है जो कुछ भी करंट फ्लो होता है वो रिलेटेड विद आपके केमिकल्स होता है. रिलेटेड विद केमिकल्स मतलब क्या होता है कि आप कितना केमिकल ले रहे हो, मतलब कि रिएक्टेंट कितना ले रहे हो. ओके, तो यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर रहे हो 1 मोल ऑफ योर केमिकल स्पेसी. ओके, तो 1 मोल ऑफ केमिकल स्पेसी ले रहे हो, बट जो कुछ भी आपका यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, क्या बोल रही हूँ मैं? चार्ज फ्लो होगा, वो सबका सब चार्ज जो कुछ भी होगा, दैट चार्ज विल बी गिवन बाय एफ. दैट चार्ज विल बी गिवन बाय एफ मतलब कि फैराडेज कांस्टेंट, मतलब कि फैराडे से देते हैं हम. एफ इज इक्वल्स टू ई एन. F is equals to En, where n is equals to 1. What? How can you give it as 1? By considering n is equals to 1, that is your number of moles are equal to 1. Then what can be the changes in your equation? If n की value 1 होगी तो F is equals to obviously what it will be? 1. F is equals to E. Now अब हमें हमारी करंट की डेफिनेशन से जहां पर चार्ज और टाइम इंक्लूड होता है, उससे हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, वेर वी नो वेरी वेल फ्रॉम करंट डेफिनेशन of charge and time, that is I will be equals to q by t. I will be equals to q by t. मतलब क्या? अब ये जो कुछ भी आपका IA है, it is equals to IA है, मतलब एनोडिक करंट, दैट इज इक्वल्स टू F इंटू RA. F इंटू RA मतलब कितना करंट फ्लो होता है उसमें से, सो इट इज गिवन बाय F इंटू RA. सो अब ये एनोडिक करंट I मतलब IA मतलब एनोडिक करंट इज इक्वल्स टू F इंटू RA की वैल्यू क्या निकाली थी बेटे? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हमने K इंटू CR, बस पुट कर दो वो वैल्यू, दैट इज K इंटू CR. अब IC की वैल्यू देखते हैं, IC is equals to F into RC होगा, सेम एज दैट ऑफ IC is equals to RC होगा F into CR. अब ये जो कुछ भी है IC that is equals to F into KC into C0 है. यहाँ पर नोट्स लिखते टाइम क्या हुआ था मेरे हाथ से, C लिखते लिखते थोड़ा सा दब गया था, तो उसे आप करेक्ट अच्छे से सुन लो और अच्छे से करेक्ट कर लो आपके नोट्स में. दैट इज C0. C0 मतलब C ऑक्सीडेशन यू कैन से, एंड दिस इज CR मतलब रिडक्शन या फिर रिड्यूस्ड स्पेसिस का. देखो CR रिड्यूस्ड स्पेसिस का और CO ऑक्सीडाइज्ड स्पेसिस का. अब मुझे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है. Yes guys, tell me.
by typing yes or no. And if no, then tell me where no. And if yes, then it's very well. Okay. Okay. Everyone of you are clear? Okay. I'm not getting yes, 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 yes from everyone. Whoever is present live, please answer. Oh, now I'm continuing to the next slide. Wait till then. I'm loading this slide. It's a very, very easier one process to explain you. But you guys must be clear. थोडस रात्रीचा वेळ असल्यामुळे क्लिअर आलेली नाहीये स्लाइड, एवढं समजून घ्या फक्त. नाव total current will be equals to sorry, I is equals to IA minus IC every time. Keep in mind, whenever your reaction is giving electrochemistry reaction you want to explain or you want to give, then always keep in mind I is equals to IA minus IC, मतलब एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट ही आपको करना है, मतलब है. ओके अब ये अगर से ये क्लियर हो चुका होगा तो आगे चलती हूँ मैं. देखिए अब जब कभी भी आपके पास में ये एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट आप लेते हो, तो अब मुझे बोलो आपके पास में ये आई ए और आई सी की वैल्यूज है कि नहीं. यस यू हैव बोथ ऑफ दोज वैल्यूज, एफ इन टू k into cr minus f into kc into c0, where from you have taken these equations from the previous one slide, you can say, or previous one equations. Then after I is equals to f into k into cr, f into k into cr. अब ये जो कुछ भी आपका f इंटू के ए इंटू सी आर है, तो सी आर इंटू के की वैल्यू क्या थी बेटा, के की वैल्यू थी देखो बी इंटू के की वैल्यू थी जो कि हमने दिए थे इक्वेशन नंबर 1 में. अभी अभी आप लोग लिख रहे होंगे, जब मैं बोल रही हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा, या फिर आपके पास मैंने शायद प्रोवाइड किए थे आपको नोट्स, तो उसमें चेक कर लो. दैट इज आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू के की वैल्यू, मतलब कि रेट कांस्टेंट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से बताया था आप लोगों को, व्हाट इट वाज बी इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी. बट अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो मैम व्हाट इज दैट आर एंड व्हाट इज दैट ए. आर मतलब बेटा रिड्यूस्ड स्पेसिस वाला आर, ये सी आर बोले तो रिड्यूस्ड स्पेसिस वाला आर. और ये जो कुछ भी, और अब ये जो कुछ भी बी ए होता है, वो बी ए क्या है, बी मतलब वो कांस्टेंट है जिसके इक्वल क्या है केबीटी बाई एच. और ए मतलब ये सबस्क्रिप्ट ए क्या बताता है आपको, तो एनोडिक रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, यह बताता है आपका ये सबस्क्रिप्ट वाला ए. चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट. अब सेम एज दैट ऑफ एनोडिक का किए वैसे ही कैथोडिक का एफ इंटू सी जीरो, मतलब कि जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां पर स्पेसीज, वो इंटू बी सी, मतलब कैथोडिक रिएक्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कैथोडिक रिएक्शन तो है ही, पर यहाँ पर जो कुछ भी स्पेसीज है आपका, हाँ जो कुछ भी स्पेसीज है आपका, तो वो स्पेसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड सी जीरो. ओके एंड यहाँ पर बी सी क्यों लिखा है, बी मतलब वो कांस्टेंट का बी, और सी क्या बताता है कैथोडिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय योर this one BC into, as you know very well, from the equation 1 we have k value is equals to kb, k value is equals to b into e raised to minus delta g star upon rt. बस वही पुट किया है. अब बात आती है फतेह की बात. देखो आई ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आई सी, मतलब कि अब अगर से यह एनोडिक आई ए मतलब ये
एनोडिक करंट अगर ज्यादा होता है तो आईसी क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पर मतलब टोटल आई की मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, एनोडिक करंट होगा वो कि कैथोडिक करंट होगा वो। तो सुनो कि वो होगा एनोडिक करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आई ए अगर ज्यादा है तो ये आई ए माइनस आई सी ये वैल्यू छोटी हो गई, मतलब ही टोटल करंट इज इक्वल्स टू एनोडिक, मतलब कि ये रिएक्शन कौन सी हुई, एनोडिक वाली हुई। कौन सा करंट हुआ वो, एनोडिक करंट हुआ। और अगर से उल्टा हो जाता है मतलब कि कैथोडिक करंट मतलब आई इज इक्वल्स टू आई ए माइनस आई सी, अगर कैथोडिक करंट ज्यादा होता है तो क्या होगा, अगर कैथोडिक करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आपकी ये आई की वैल्यू कम होगी, मतलब कि आपका जो कुछ भी आई की वैल्यू होगी ये कम होगी, तो क्या होगा, ये ज्यादा होगी, मतलब कि आई सी की वैल्यू। फिर क्या होगा कि आई की जो टोटल वैल्यू होगी तो उसमें मतलब प्रीवियस हेलो हरीश, म्यूट योरसेल्फ। हरीश, म्यूट योरसेल्फ। I is equals to IA minus IC. Now, see guys, there is lot of background noise. That for purpose I am likely ओरडून ओरडून क्लास घेतीये बिकॉज तुम्हाला बॅकग्राऊंड नॉईज येऊ नये. आता तो येतोय की नाही येतोय आय डोंट नो, बिकॉज वी हॅव लाईक प्लस मेंबर्स ऑफ वेबएक्स, दैट फॉर पर्पज आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा होगा. अब देखो, यहाँ तक आप लोग अगर क्लियर हो गए होंगे तो सुनो कि अब इस इक्वेशन में मतलब मैं लिख कर थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को कि ये जो कुछ भी आई है, आई इज इक्वल्स टू आई ए माइनस आई सी. हाँ, व्हाट हैपन, देयर वाज मैसेज, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, प्लीज टाइप अगेन. आई इज इक्वल्स टू आई माइनस आई सी. अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका सब्सट्रैक्शन करके ये वैल्यू छोटी है, मतलब अगर समझो आई 10 है और आपका आई सी मतलब 5 हो गया तो आई क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 5. यस और नो, एंड इसी को हम बोलेंगे एनोडिक करंट. क्लियर टू एवरीवन? बट if you have vice versa thing, means I mean to say I is equals to IA minus IC. अब मैं स्मॉल लिख रही हूँ कभी लार्ज लिख रही हूँ, नथिंग मैटर्स. हाँ, आपको सिर्फ टर्म समझ में आनी चाहिए. ओके, नाउ आई इज इक्वल्स टू आई ए अगर से कम हो गया मतलब ये 5 है समझो और ये 10 है तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी एक तो ये वैल्यू -5 आएगी और आप उसी को बोल सकते हो कि ये जो कुछ भी करंट होगा वो कैथोडिक होगा, विच विल बी लेस देन दैट ऑफ जीरो. माइनस जीरो से देखो, इधर माइनस होता है, इधर जीरो होता है और इधर प्लस वैल्यू होती है. अगर वो जीरो से कम हो रही है मतलब वो क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल बी अ कैथोडिक करंट. ऑब्वियसली इट विल बी अ कैथोडिक करंट. कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये कैथोडिक करंट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैथोडिक करंट होगा. अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा. अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ और वो टर्म क्या है तो सुनो. अब ये सब कुछ हो रहा है बट एक्चुअली कुछ वर्क डन हो रहा है या फिर नहीं, वो हम देखते हैं. तो दैट इज नथिंग बट W इज इक्वल्स टू मतलब क्या कि ये जो W है, हाँ, तो W इज नथिंग बट द डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल, मतलब कि कितना वर्क डन हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो दैट कैन बी गिवन बाय W इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा फाइव. E इंटू डेल्टा फाइव. तो डेल्टा फाइव क्या है, डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल. अब ये जो कुछ भी डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल है, अब तक सारी की सारी बात मैंने कौन सी बोली थी आपको, मैंने पहले ही बोला था यह सब कुछ अब तक हम जो लर्न कर रहे हैं वो किसके बारे में था, वो सब कुछ और सब कुछ था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के किसके इक्वल, इक्विलिब्रियम के इक्वल. बट always things are not same, means what,
means now I'm going to tell you when your reaction is not in equilibrium condition. Not in equilibrium condition मतलब क्या होता है बोलती हूँ। हाँ, देखो अभी ये फिगर लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए अभी ये क्या हुआ, ये आपका नॉर्मल ये होगा रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, उसका कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में एंड ऑल। हाँ, फिर या फिर आप बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, उसका कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट में। बट ये कब हो सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। बट अगर से अब आप कंसिडर कर रहे हो इफ योर रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अच्छे से समझ लो, इफ योर रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या, you do not have any rate of forward reaction is not equals to backward reaction। मतलब क्या, मेटल से जब अब हम जा रहे हैं Mn प्लस की तरफ, तब अब रेट इक्वल नहीं है, मतलब वो ऐसा कुछ तो भी होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा। मतलब ये जो कुछ भी अब आपका रेट होगा ये नॉर्मल का था। हाँ, ये यहाँ तक नॉर्मल का था। बट अगर से आपका रिएक्टेंट का स्पेसिस, रुको अलग पेन लेके बताती हूँ। अब यह जो कुछ भी आप लोगों का रेट होगा वो ये नॉर्मल था आपका, ओके। बट अब नॉन रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, फिर क्या होगा? वेट मिनट, अब आप लोगों का रेट में भी ऐसा हो सकता है, आप फिगर में इसे देख सकते हो, और ये आपका रेट ऐसे नीचे जा सकता है, ओके। तो अब ये आपका रेट जो कुछ भी पहले था, पहले वाला आपका जो कुछ भी रेट था, वो रेट कैन बी गिवन लाइक डेल्टा जी, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। बट अब क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ यहाँ से मतलब कि रिएक्शन से, मतलब मेटल से यम प्लस की तरफ जाने के लिए, मतलब कि आई ए आप देते हो, तो वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अब यह जो कुछ भी आपका एनोडिक करंट है, वो एनोडिक करंट इज लेस देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम, जो कुछ भी उसका डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी थी, उससे भी कम आपका अब वो क्या बोलते हैं हम उससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला जो कुछ भी आपका डिफरेंस होगा वो कम होगा। बट अब कैथोडिक करंट के लिए देखो आप अच्छे से इस डायग्राम में, वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि आप यह इससे बता सकते हो IA is not exactly equals to IC, or you can say in another words IC is greater than that of IA, okay। तो अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि कैथोडिक का जो कुछ भी करंट है वो करंट, या फिर कैथोडिक का जो कुछ भी चेंज इन फ्री एनर्जी है, क्या बोलते हैं क्या बोल सकते हैं बेटा, चेंज इन फ्री एनर्जी है, वो पहले तो इतनी थी बट अब कैथोडिक की क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितनी भी बढ़ती है वो आपकी फ्री एनर्जी, कितने से बढ़ती है, क्या बढ़ती है, वो सब कुछ देखेंगे। तो दैट कैन बी गिवन बाय डेल्टा जी सी, की सी बोले तो सबस्क्रिप्ट सी टेल्स यू अबाउट कैथोडिक करंट। सो डेल्टा जी स्टार इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टार, मतलब ये एक्चुअल वाला, पहले वाला, अपना वाला, ओरिजिनल वाला, ये वाला, ओके। प्लस उसमें अब कितने से इंक्रीमेंट हुआ, ये अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा नहीं चाह रही हूँ, बट आपको नोट्स में दिया है ये। हाँ, तो इतना जो कुछ भी ये बढ़ रहा है, हाँ, तो ये बड़े वाला, हाँ, ये इतना जो बड़े वाला आपका डेल्टा जी है, मतलब कि इंक्रीज वाला जो कुछ भी आपका पोटेंशियल है, दैट कैन बी गिवन बाय ई इंटू डेल्टा फाइव, ई इंटू क्या बेटा, डेल्टा फाइव, वेर एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा फाइव बोले तो क्या, वर्क डन, यस और नो गाइस, वर्क डन बोले तो ई इंटू डेल्टा फाइव। अभी ये वर्क डन ई इंटू डेल्टा फाइव हम लोगों ने कहीं पर एक्सप्लेन किया है क्या, तो यस उसका आंसर है यस। और कैसे एक्सप्लेन किया है तो वो बोलती हूँ, एफ इज इक्वल्स टू ई कहाँ से बताया है हमने, प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। देखो एफ इज इक्वल्स टू ई मतलब इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैल्यू, and which can be given by alpha value where it is ranging from 0 to 1, where it can be ranging from 0 to 1, मतलब कि क्या दे सकते हैं हम कि
जो कुछ भी डेल्टा जी सी, सॉरी डेल्टा जी सी मैंने डायरेक्ट बोला, बट डेल्टा जी स्टार सी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, मतलब ये एक्चुअल वाला, ओरिजिनल वाला, इक्विलिब्रियम वाला, प्लस अब ये जो कुछ भी ई इंटू डेल्टा फाई है उसी को हम कैसे बता सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा फाई। एफ इंटू डेल्टा फाई कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू ई है, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू ई है। बस, तो अब यहां से हम क्या दे सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू ई, ये क्या है, ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एंड विच कैन बी पुटेड बाय, और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सो बाय रिप्लेसिंग इट बाय अल्फा इंटू एफ इंटू थीटा, सॉरी फाइव, गलती से मैंने थीटा बोला, इट्स 5। सो your equation can become like delta g star c is equals to delta g star, मतलब जो ओरिजिनल का था वो, प्लस कितने से बड़ा, तो अल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव। अब बात आती है कि मैम कैथोडिक करंट का तो हो गया, ठीक है, बट अब एनोडिक करंट का क्या हुआ था, देखो क्या हुआ है, देखो, क्योंकि, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ से यहाँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ ये जो कुछ भी रिएक्शन हो रही है, तो एनोडिक रिएक्शन इज फ्रॉम मेटल टू ये Mn प्लस। अब एनोडिक रिएक्शन के लिए जो कुछ भी डेल्टा जी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब उसे सब्सट्रैक्ट करना होगा कि नहीं, तो उसका आंसर है यस। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, तो उसका आंसर है कि देखो आपके सामने मैं इक्वेशन पुट कर रही हूँ, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन इज नथिंग बट सिंपली, what is it, delta g star a, मतलब फॉर एनोडिक करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टार। अब क्या हुआ था यहाँ पर, उसका डेल्टा जी का जो कुछ भी रेट है, डेल्टा जी है, उसकी फ्री एनर्जी है, वो कम हुई थी कि ज्यादा हुई थी, कम हुई थी। यहाँ पर बढ़ रही थी कैथोडिक में, कैथोडिक करंट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रही थी, तो उसे क्या किया, एडिशन किया, कितने से बढ़ी, अब कम हो रहा है तो उसे सब्सट्रैक्ट करना होगा ऑब्वियसली। तो माइनस कितने से कम हो रही है, तो मैंने अभी अभी बोला था वो ज्यादा से ज्यादा एक होता है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1, तो माइनस अपना जो कुछ भी ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो कितना है, अल्फा इंटू एफ इंटू डेल्टा फाई। बस, तो ये क्या हुआ, आप लोगों का एनोडिक करंट, या फिर एनोडिक वाला, सॉरी, यस, एनोडिक वाला जो कुछ भी डेल्टा जी है वो डेल्टा जी स्टार, मतलब कि उसकी फ्री एनर्जी वाला चेंज। अब चलते हैं आगे, व्हाट इज दैट इज नथिंग बट आई इज इक्वल्स टू, as everybody of you knows very well, simply I मतलब टोटल करंट दैट इज इक्वल्स टू एनोडिक माइनस कैथोडिक। तो चलो करते हैं पुट एनोडिक और कैथोडिक। तो कैसे पुट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर। अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैम व्हाट आर यू गोइंग टू डू, सिंपली आई एम गोइंग टू पुट अप, ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब हमारा इक्वेशन ना थोड़ा बड़े वाला, या फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा आप लोगों को दिखेगा, या फिर यू में फील लाइक मैम ये सब कुछ कैसे लिखे हम एग्जाम में, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, पहली थिंग। और दूसरी थिंग, बस छोटे छोटे जो चीजें अब तक निकाली थी वो सारी चीजों को अब इक्वेशन में पुट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, आई ए माइनस आई सी। तो फिर आई ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी, यस और नो। अब यहाँ पर मुझे बोलो डेल्टा जी स्टार, मतलब कि अब एनोडिक और कैथोडिक का करंट आपके पास है, तो डेल्टा जी सी की और डेल्टा जी ए स्टार की वैल्यू है कि नहीं आपके पास, यस, इट्स आंसर इज यस, यस। तो क्या करोगे आप, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर। अब देखो मैं कुछ भी अलग नहीं कर रही हूँ, सब लोग अच्छे से देखो, एफ इंटू सी आर, देखो क्या वैल्यू है, आई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन, रुको मैं उस इक्वेशन को बॉक्स करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड।
सो अब अब यह जो कुछ भी एफ सी आर बी ए है वो एज इट इज है एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा जी स्टार। अब ये डेल्टा जी स्टार किस चीज का है? ये अब होगा कैथोडिक का। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैथोडिक वाला डेल्टा जी स्टार है उसे हम पुट करेंगे। तो वो क्या होगा, डेल्टा जी स्टार सी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, हाँ, डेल्टा जी स्टार, डेल्टा जी स्टार प्लस ऑफ क्या है, ई इंटू डेल्टा फाइव, ई इंटू डेल्टा फाइव। वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। बट आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू किस चीज की है, कैथोडिक की है, और ये वैल्यू किस चीज की है, एनोडिक की है। तो अब यहाँ पर एनोडिक माइनस कैथोडिक है, तो हम क्या करेंगे, एनोडिक वाला जो कुछ भी अभी ये वैल्यू है वो पुट करेंगे। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, that is nothing but delta GA star is delta GA star is equals to delta G star minus 1 minus alpha into F into delta phi। बस वो वैल्यू पुट कर दी और उसके डिवाइडेशन में RT था, जैसे कि वैसे लिख दिया, सेम एज दैट ऑफ फॉर कैथोडिक। अब ये कैथोडिक का मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, क्या करती हूँ, कोई नहीं, F इंटू सी जीरो, देखो F ऊपर की इक्वेशन में भी देखो, देखो चलो पुट के ला रो, एफ इंटू सी जीरो इंटू बी सी इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। ये जो डेल्टा जी स्टार है वो किसका है, एनोडिक सॉरी कैथोडिक का है। तो ये वैल्यू जो कुछ भी कैथोडिक की है, डेल्टा जी स्टार सी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टार प्लस अल्फा इंटू एफ इंटू डेल्टा फाइव, वो वैल्यू पुट कर दो, कर दिए। अब ये वैल्यू अगर पुट कर दिए तो अब आप लोगों को पता है यहाँ पर माइनस दिख रहा है, अब इस माइनस से सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आपके इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज की है। हाँ, इस इक्वेशन में हमने ये यहाँ पर माइनस से जो जो ये ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार था कि नहीं, ये माइनस इक्वेशन के बाहर था, उसे सारे इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा आपका इक्वेशन, आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी सेम, हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार प्लस प्लस। अब यहाँ पर जीसीजीए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीसीजीए जो था उसकी वैल्यू डेल्टा जी स्टार के अमाउंट में, उसके फॉर्म में लिख दिए हमने। अब यहाँ पर माइनस था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस होगा, और ये जो कुछ भी टर्म है 1 माइनस अल्फा इंटू एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन आर टी, माइनस जो कुछ भी ये टर्म से एज इट इज आएंगे, और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पर ये जो अल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव है वो टर्म सिर्फ माइनस होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी हमारा ये आरटी है वो आरटी क्या है, एफ को मतलब ये आरटी जो कुछ भी है तो उसे हम अलग करेंगे, मतलब सेपरेट डिवाइडेशन में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है पता है आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास ये आई की वैल्यू है, क्या है, एफ इंटू सी आर इंटू है, मतलब कि कैथोडिक एनोडिक करंट हु आर एग्जैक्टली इक्वल, और हमें इतना सारा का सारा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन याद रखना नहीं है। अब ये बटलर वोल्मर इक्वेशन में है, मतलब इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो क्या करना है, उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एफ इंटू सी आर इंटू बी इंटू ई रेज टू माइनस डेल्टा जी स्टार है, उसके नीचे ये सब के नीचे क्या है, आर टी, तो उससे डिवाइड करो और निकालो साइड को, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम वाली टर्म है, हाँ, और ये क्या होगा, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो कैसा होगा, ई रेज टू 1 माइनस अल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन आर टी, ओके, एंड देन आफ्टर माइनस ऑफ f into c0 into bc into e raised to minus delta g star upon rt, and same as that of for alpha f into delta phi upon rt। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइडेशन करके लिया है। सिंपल सिंपल चीज है बट समझ में आना जरूरी है। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है भी या फिर नहीं भी तो फिर नोट करो आप क्या कर रहे हो एक एक टर्म में। सीधे सीधे आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ एक काम करो, इंग्लिश में एग्जाम में लिखो, ओके, नहीं तो फिर वहां पर चीटिंग एज ए चीटिंग समझ आ जाएगा एग्जाम में, ओके। तो अब नाउ
फ्रॉम ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था वहां पर हमने बताया था कि ओवर पोटेंशियल इज नथिंग बट एन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की कैपेसिटी। अब काम करने की कैपेसिटी किस चीज की? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड की। उस इलेक्ट्रोड की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, मतलब कि उसका जो कुछ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो वो हम देते हैं ईटा वैल्यू से। इफिशियंसी कभी भी हम बताते हैं ईटा से। जैसे कि आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल पढ़ा था, तब आप लोग जब इफिशियंसी दे रहे थे तो आप लोगों ने इफिशियंसी बताई थी ईटा से। सो सेम एज दैट ऑफ ओवर पोटेंशियल कैन बी डिनोटेड बाय ईटा, and that is nothing but an efficiency of electrode potential that is equals to delta phi minus delta phi equilibrium। मैंने जानबूझ के यहाँ पे मेंशन किया है डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये इक्विलिब्रियम जब होता है तब वाला डेल्टा फाई है, और ये जब डेल्टा फाई है तो ये नॉट इक्विलिब्रियम मतलब नॉन इक्विलिब्रियम टाइम का है ये। ओके, नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल यू कैन से। एंड नाउ I think I forgot to share with you guys one slide. And what is in that slide? Let me just check with it. Shit. Just wait a minute. I'll share you the next slide. Huh? Wait till then. I'm loading this slide. Wait a minute. Yes, it is right in front of you. It must be. No. Where I am. Think. Yeah. Is it visible? Is it visible? Wait a minute. I'm not able to read anything. Hmm. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, Pooja. Surely, surely. I'll send it. I forgot to share with you guys this equation. I'll surely share with you. Hmm? Now, let me just come back to the point. And now, what do we have? We have the equation values. And what is that? जो अब ये RT से मल्टीप्लाई किया था वो ये सारा का सारा इक्वेशन हमारे पास में है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू एन प्लस डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम, तो उसको हम अब से पुट करने वाले हैं, तो वो पुट करो। चलो आओ क्या करते हैं अब हम। I इज इक्वल्स टू कब का? इक्विलिब्रियम का। कब का? जब आप ईटा वैल्यू है आपके पास, तो I इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू बी इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी। ये सारा इक्वेशन एज इट इज। जस्ट द चेंज विल बी अबाउट टू your cathodic current
वाई बिकॉज कब बढ़ रहा था आपका ईटा, मतलब ओवर पोटेंशियल कब आप दे रहे थे, जब कैथोडिक करंट बहुत 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 ज्यादा था। कब ज्यादा था, जब कैथोडिक रिएक्शन हो रही थी, एनोडिक के लिए कम हो रहा था। तो उसके लिए कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं, बट कैथोडिक के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यह जो कुछ भी टर्म होगी, तो ये टर्म मतलब कि इटा इज इक्वल्स टू, मतलब कि डेल्टा फाई कैन बी रिप्लेस्ड बाय इटा प्लस ये। अब मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे, रुको मैं कोशिश करती हूँ। यस, ये, हाँ, ये सब कुछ। और ना यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो चुका है, तो वो समझ लो क्या है। हाँ, कुछ नहीं हौच पौच, मतलब ऐसे हौच पौच नहीं है। वेर डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू इटा प्लस ईयर डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। बस तो फिर आप लोगों को क्या करना है, एफ इंटू सी जीरो इंटू बी सी, मतलब कैथोडिक रिएक्शन है, डेल्टा स्टार अपॉन आर टी है। ये गलती से ना मेरा स्लैश रह गया है, मतलब डिवाइडेशन का साइन, इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एफ इंटू, और एक चीज है जो मैं इस नोट्स में भूल गई थी, मैं नेक्स्ट टाइम जब आती है तो वो गलती से जो लिखा था वो मैं, हाँ शायद मैंने करेक्ट कर दिया था इस स्लाइड में। तो देखो क्या आपको करेक्ट करना है, यहाँ पर जी स्टार के डिवाइडेशन में आर टी करना है यहाँ पर, हाँ, इंटू, ओहो, हाँ, यहाँ पर अब ई रेस टू माइनस अल्फा एफ इंटू, क्या था, डेल्टा फाइव था, डेल्टा फाइव की जगह क्या देना था, इटा प्लस डेल्टा फाइव इक्विलिब्रियम दे दो, बस दे दिया, उसके डिवाइडेशन में आरटी लिखो। बस तो फिर अब क्या कर रहा है, अब हम सेपरेट करेंगे ब्रैकेट के टर्म्स, सेपरेट करेंगे ब्रैकेट के टर्म्स, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम वाले सारे के सारे टर्म्स पास में लाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें आई इज इक्वल्स टू कैथोडिक और एनोडिक का हम शॉर्टकट देख के उसको इक्वल के फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब क्या, हवा में बात नहीं करती हूँ, बताती हूँ। आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी इंटू ई रेस टू वन माइनस अल्फा एफ इंटू इटा अपॉन आर टी। कुछ नहीं, बस ये जो टर्म कुछ नहीं, क्या किया है यहाँ पे, वन माइनस अल्फा एफ इंटू इटा, हाँ, तो ये जो कुछ भी एफ इंटू इटा है उसको हमने डिवाइड किया है आर टी से। और जो कुछ भी आपका ये वैल्यू है, अब यह जो कुछ भी हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को इटा और फाई ई के फॉर्म में दिया है। तो अब ये जो दोगे आप, वो क्या होगा, कम होगा ना, एनोडिक का उतना कंसिडरेबल नहीं होगा। पर अब यहाँ पर ये जो कुछ भी एफ और ये वन माइनस अल्फा, हाँ, और ये किस चीज के थिंग्स है वो बताती हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्री एनर्जी when you have equilibrium condition. Also this is for when you have equilibrium condition. And now whatever e raised to 1 minus alpha f into delta phi e upon rt, और ये e raised to minus alpha nf upon rt है ना, ये पोटेंशियल जब इक्विलिब्रियम में रहता है तब की चीज है। मतलब क्या, समझ रहे हो आप मेरी बात, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू आई आई ए, मतलब कि एनोडिक करंट वाला, और दिस इज इक्वल्स टू, आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, आई सी, मतलब कैथोडिक करंट। हाँ, एक पास मिनट, मतलब कि ये कैथोडिक करंट। ओके, अब आई इज इक्वल्स टू ये जो कुछ भी एफ इन टू, अब क्या करोगे आप, उसे सिर्फ साइड साइड को निकालो, मतलब क्या, ये एफ वाले टर्म और ये वाला टर्म साइड को ले लो, और ये जो रह जाता है उसे एक साइड को लो। क्यों, क्योंकि आप लोग इसके बजाय क्या लिख सकते हो, आई जीरो, मतलब आई जीरो, मतलब कि आई इज इक्वल्स टू आई जीरो। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती हूँ, रुको, पहले बताया वाला में भी आप भूल चुके होंगे तो बोलती हूँ, पर उससे पहले अब ये जो कुछ भी एफ इंटू सी ए, सी सॉरी सी ए नहीं, सी आर, टंग स्लिप हो गई थी, एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई रेस टू वन माइनस अल्फा एफ इंटू डेल्टा फाई ई अपॉन आर टी। अब ये ई रेस टू जो है उसे तो हमें क्या करना होगा, इसके बजाय क्या ले सकते हैं हम, आई जीरो, मतलब क्या है ये, एनोडिक का करंट, मतलब क्या, किससे बता सकते हैं हम इसको, आई ए से, मतलब कि आई ए इज इक्वल्स टू आई सी इज इक्वल्स टू आई जीरो।
कैसे? देखो यहाँ पर जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं तब की बात कर रहे हैं हम, बट यह जो सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं वो किसकी है? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब क्या पढ़ रहे हैं? नॉन इक्विलिब्रियम। पहले क्या पढ़ा? इक्विलिब्रियम। बट अब अगर से इक्विलिब्रियम वाली टर्म हमें हमारे पास में है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे शॉर्ट फॉर्म में? I0 इज इक्वल टू आई ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आई सी इक्विलिब्रियम। आई ए इक्विलिब्रियम मतलब एनोडिक वाला जो इक्विलिब्रियम है, इट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू कैथोडिक वाला इक्विलिब्रियम। तो फिर I0 करो, मतलब क्या? I इज इक्वल्स टू आई ए इक्विलिब्रियम इंटू ई रेस टू क्या रह गया है? 1 - अल्फा इंटू एन एफ अपॉन आर टी माइनस ऑफ 1 IC इंटू इक्विलिब्रियम। कहाँ? कब का है? इक्विलिब्रियम का। इसके बजाय ये सारी टर्म के बजाय हम क्या लिख रहे हैं बेटा? IC इक्विलिब्रियम। और यह सारी टर्म की बजाय हम क्या लिख रहे हैं? ये अलग है, हाँ, ये इसके बजाय हम क्या लिख रहे हैं? IA इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, एंड रह क्या जाता है देख लो एक बार। ई रेस टू 1 - अल्फा एफ इंटू ईटा अपॉन आर टी। और यहाँ पर क्या रहता है? ई रेस टू -अल्फा NF अपॉन RT। बस, तो ये जो चीजें रह गई है वो लिख दी है। अब मुझे बोलो, अगर IA इक्विलिब्रियम और IC इक्विलिब्रियम इक्वल टू इच अदर है इस इक्वेशन से, मतलब इट इज इक्वल्स टू I0, फिर मैं इसके बजाय IA इक्विलिब्रियम और IC इक्विलिब्रियम के जगह में अगर से I0 पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? मुझे लगता है नहीं होगा। अगर नहीं है तो I इज इक्वल्स टू I0 इंटू क्या रह गया है? E⁻⁻⁴ इंटू ईटा अपॉन आर टी माइनस I0 इंटू E⁻⁻NFE अपॉन आर टी। अब ये I0 सेम है तो उसे एक ब्रैकेट के बाहर लेती हूँ तो क्या रह जाता है? I इज इक्वल्स टू I0 इंटू, अब ब्रैकेट में क्या रह गया? I0 तो नहीं है तो क्या रह गया है? इसके इंटू में क्या है? E⁻⁻⁴ इंटू ईटा अपॉन आर टी माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिखते लिखते थोड़ा सा डॉट हो गया था। ओके, माइनस E⁻⁻NF अपॉन आर टी। बस, तो फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं? तो वेरी फेमस वन इक्वेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, which is nothing but Butler-Volmer equation. And now you guys can ask me if you have any doubt. I'm ready to explain.